کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ فورس ہے، وہ قوت ہے کہ جب وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اوکے، اس کو دیکھتے ہیں کہ میننگ آف فاسٹ، صوم کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں صوم کہتے ہیں روزے کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ أَمْسَاكٌ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ، کسی بھی چیز سے باز رہنے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جو اہل عرب تھے وہ صوم کو کیسے استعمال کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں اس ورڈ کا اطلاق کیسے ہوتا تھا؟ اہل عرب کے ہاں دو مشہور جانور پائے جاتے تھے، وہ تھے کیمل، اونٹ اور گھوڑا۔ کیمل کے اندر یہ خاصیت موجود تھی کہ وہ کئی دن بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے۔ میم جی میم آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میری آواز کم آ رہی ہے؟ باقی لوگ یہاں پہ بتائیں، نایاب، شکیلہ، طاہرہ، آواز میری کم آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے، نہیں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا مہوش، آپ اپنے موبائل کا نا والیوم دیکھیں، سارے والیومز کو دیکھیں۔ اچھا جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کیمل جو تھا، اونٹ، اس کے اندر یہ خاصیت موجود تھی کہ وہ کافی دن جو ہے بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے، اور اس کو لے کے سفر کرنا، اس کے ساتھ سفر کرنا اس وجہ سے ایزی ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، جب مکہ سے اگر مدینہ جانا ہو تو یہ تقریباً 8 دن کا سفر بنتا ہے، اور مکہ سے اگر شام جانا ہو تو یہ تقریباً 2 مہینے کا سفر ہے۔ اس دور میں یہ سفر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے جو سب سے سوٹیبل جانور تھا وہ اونٹ تھا۔ اونٹ جو تھا کئی دن بغیر کھائے پیے رہ لیتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی جانور کا کھانا اور اس کا پانی لے کے ٹریول کرنا بہت مشکل تھا، اور عرب میں پانی بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اونٹ جو ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ سوٹیبل تھا کہ اس پہ وہ آسانی سے سفر کر سکتے تھے اور دور دراز تک جا سکتے تھے۔ لیکن اونٹ جو تھا وہ سلو جانور تھا، یعنی اس کے چلنے کی جو رفتار ہے وہ بہت سلو تھی۔ عرب جو تھے، یہ عرب جو ہے یہ صحرا ہے، اور یہاں پہ سبزہ جو ہے بہت کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ عربوں کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ یا تو جنگوں پہ ہوتا تھا، یعنی جنگوں کے بعد جو ان کے ہاں مال غنیمت آتا تھا اس پہ ہوتا تھا، یا وہ ڈاکہ زنی کرتے ہوتے تھے، مختلف قافلوں کو لوٹتے ہوتے تھے، مختلف قبائل کو لوٹتے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا پروفیشن تھا۔ تو جنگ کے لیے یا لوٹ مار کرنے کے لیے ان کو ایک ایسے جانور کی ضرورت تھی جو ایک تو وہ بہت زیادہ سپیڈی ہو، اور وہ تھا گھوڑا، اور دوسرا جو ہے وہ جانور ہو جو مشقت برداشت کر سکے اور بغیر کھائے پیے جو ہے وہ رہ سکے۔ لیکن گھوڑے کے اندر یہ خاصیت موجود نہیں تھی، یہ خاصیت صرف اونٹ کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں جو ہے ہر وقت گرم لو چلتی ہوتی تھی جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ہوتے تھے، تو گھوڑا جو تھا اس ماحول کو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوتا تھا، تو انہوں نے گھوڑے کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کے لیے سوم رکھوایا۔ یہ اپنے جانوروں کو یعنی گھوڑے کو سوم رکھواتے تھے۔ یہ کرتے کیا تھے؟ یہ ہوا کی ڈائریکشن میں
घोड़े को खड़ा कर देते थे और खुद घोड़े पे बैठ जाते थे, अपने सर को ये कवर कर देते होते थे और कई कई घंटे उसको उस तेज धुंध हवा में खड़ा रखते थे। इसके अलावा घोड़े को ये कई कई दिन खाना पीना, खाने पीने से बाज रखते थे, उसको खाना पीना नहीं देते थे। इसके बाद क्या होता था कि घोड़े के अंदर एक जब्त पैदा होता था, उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त होती थी, कुव्वत पैदा होती थी, जिसकी वजह से वो भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकता था। तो ये कहते थे कि हमने अपने घोड़े को सौम रखवाया है। ठीक है, तो कुछ ट्रेनिंग के बाद, कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद ये अपने घोड़े के अंदर वो एबिलिटी पैदा कर लेते थे जिसकी इनको जरूरत थी। तो बिल्कुल सौम जो है वो एक ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग के बाद इंसान के अंदर वो एबिलिटी पैदा हो जाती है, यानी कुव्वत पैदा हो जाती है, जब्त पैदा हो जाता है। तो हम जो 30 दिन रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला ने जो रमजान के रोजे फर्ज किए हैं, उसका मकसद क्या है कि हमारे अंदर कुव्वत पैदा हो, कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो, जब्त पैदा हो, हम ख्वाहिशात को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब है 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा होगी, हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें, क्योंकि 30 दिन हमने इसी चीज़ की प्रैक्टिस की है, इसी चीज़ की ट्रेनिंग की है। अच्छा, इसके अलावा जो रोज़ा है वो इंसान को अपने मकसद हयात पे लेके आता है। कैसे कि इंसान जो है वैसे खाता पीता रहता है, उसका काम है खाना या पीना, उसकी सोच यही रहती है, लेकिन ये 30 दिन उसका खाना पीना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वो काम करता है, उसको उस काम की तरगीब दी गई है जिसके लिए वो पैदा हुआ है, जिसके लिए उसको रोजे रखवाए गए हैं, यानी वो अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करता है कुरान के जरिए, नेक अमाल के जरिए। तो रोजा जो है इंसान के अंदर ज़ब्त ख्वाहिश पैदा करता है, इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है। फिर रोजा हमको हमारा मकसद हयात बताता है, सिखाता है कि हमारा मकसद क्या है, कि हम अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करें। फिर ये जो रोज़ा है ये वो इबादत है जो फरिश्तों की इबादत के मुशाबिह है। वो कैसे? फरिश्ते भी खाते पीते नहीं है, वो भी ख्वाहिशात से बाज रहते हैं। तो जब इंसान सौम रखता है, हम जब सौम रखते हैं तो हम खाने पीने से बाज रहते हैं, हम ख्वाहिशात से रुके रहते हैं, यानी हलाल से भी हम रुके रहते हैं। तो फिर हराम से रुकना तो औला है, यानी हराम से तो रुकना जो है, रुकना प्रेफर्ड है, ये तो ज़्यादा हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। अच्छा, तो रोज़ा जो है इंसान की एक रूहानी ट्रेनिंग है, इंसान की रूह की ट्रेनिंग है, और जब इंसान का पेट खाली हो तो तब ये ट्रेनिंग हो सकती है। इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, दो चीज़ों का जो है मिलाप है, एक जिस्म और रूह। जिस्म को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है और इसका जो खाना है, इसकी जो ग़िज़ा है वो भी मिट्टी से पैदा की है, मिट्टी से उगाई है। दूसरी है रूह। रूह को अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है और रूह की ग़िज़ा जो है वो भी अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है, और वो है वही कुरान। तो ये महीना जो है हमारी रूह की ट्रेनिंग का महीना है। हम रूह को अच्छी आदत डालते हैं हर दिन 30 डेज, जब वो एक काम प्रैक्टिकली करती रहती है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, अच्छाई करने की आदत पड़ जाती है। यहाँ तक हमारा जो था पर्पस ऑफ फास्टिंग ये खत्म हो गया। फिर है लेवल्स ऑफ फास्टिंग। इन लेवल्स को जानना क्यों ज़रूरी है? इन लेवल्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम रमज़ान में अपने आप पे चेक कर सकें, अपने रोज़े को चेक कर सकें कि हमारा रोज़ा जो है वो किस तरह का जा रहा है। सबसे जो अदना दर्जे का रोज़ा है वो रोज़ा ये है कि इंसान खुद को पेट भरने और शहवत यानी ख्वाहिशात से रोके।
یہ سب سے لو لیول کا درجے کا روزہ ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ جو لیول ہے وہ خاص روزہ. پہلا عام روزہ تھا، سیکنڈ ہے خاص روزہ. خاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، یعنی تمام اعضاء کی حفاظت کرے. پیٹ کے روزے کے علاوہ انسان پوری اعضاء کو روزہ رکھوائے. پھر سب سے جو ہائیسٹ لیول کا روزہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو ردی خیالات اور اللہ سے دور کرنے والی جو تھاٹس اور افکار ہیں ان سے پاک کر دیں. یعنی ہر وہ خیال، افکار، تھاٹ، وسوسہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے ہم اس کو نکال دیں، اور ہمارے دماغ میں کیا ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی یاد. اور یہ چیز جو ہے انسان کو پریکٹس سے حاصل ہوتی ہے. جب ہمارے ذہن میں ہمیں لگے کہ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہم اس کو ہٹا دیں، ہم اچھی بات سوچیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو خاص الخاص روزہ جو ہے یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے روزہ رکھنے کا، اور اس پہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، اس لیول کو انشاءاللہ ہم نے اچیو کرنا ہے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے کہ ہم اپنے روزے کی معیار کو کیسے بڑھائیں، کیسے امپروو کریں. انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. اچھا جی، ہم نے کل جو دعائیں یاد کی تھیں، روزہ افطار کرنے کی دعا سنائے، کون سنائے گا؟ جی ارشی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ٹھیک ہے، صحیح، بارک اللہ فیکم. جی شفق. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اس کو دیکھ کے پڑھیں. ذهب الظمأ ذو کو پر کریں. ذهب الظمأ ظمأ، ظمأ ذو کو پر کریں. ظمأ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ زبانی سنائیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ٹھیک ہو گیا، صحیح، بارک اللہ فیکم. جی واٹس ایپ پہ کون سنائے گا؟ جی میم ہم سنائیں. ایک منٹ. مناہل آپ نے سنانا ہے؟ جی میم. چلیں سنائیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ٹھیک ہو گیا، گڈ، بارک اللہ فیکم. جی حلیمہ. السلام علیکم. جی سنائیں. ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. دیکھ کے پڑھیں ایک دفعہ. میم دیکھ کے پڑھیں اس کو ایک دفعہ. ذهب الظمأ ذو کو پر وبطلت کریں. العروق. یہ جو ذو ہے نا اس کو موٹا پڑھنا ہے. ظمأ. ظمأ وبطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وابتلت العروق. وبطلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ٹھیک ہے، صحیح، بارک اللہ فیکم. اللہم زد فضل. جی اور کسی نے سنانا ہے واٹس ایپ پہ؟ جی میم. جی. ذهب الظمأ
وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. यहाँ से देखें वबतल्लत العروق وابتلت العروق वबतल्लत العروق وابتلت العروق आगे पढ़ें وثبت الأجر إن شاء الله. सही बारिकल्लाहु फीकुम। जी अस्मा आपने सुनाना है। جی میم जी ذهب الظمع وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ये जो आपका बा है ये साकिन भी पढ़ा जा रहा है, उसके ऊपर जबर भी पढ़ा जा रहा है। वब कलकला होगा इसके वबतल्लतिल उरूक وابتلت العروق पढ़ें आप पूरी देख के। ذهب الظمع وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ठीक है सही बारिकल्लाहु फीकुम अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल। अच्छा इसकी ट्रांसलेशन कौन सुनाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़हबल ज़माउ वबतलतिल उरुकु वज़बतल अजरु इंशाअल्लाह। ये उरू को लंबा करें, यहाँ पे वाव मदा हो रहा है। वबतल्लतिल उरूकु वबतलतिल उरुकु उरूकु रू को खींचे उरुकु वज़बतल अजरु इंशाअल्लाह। एक दो दोबारा पढ़े। ज़हबल ज़माउ वबतलतिल उरुकु वज़बतल अजरु इंशाअल्लाह। ठीक है सही बारिकल्लाहु फीकुम। जी अर्शी आपने इसको ट्रांसलेट करना है। यस मैम जी। ज़हब ज़माउ प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूकु रगे तर हो गई, वसबतल अजरु अज्र साबित हुआ, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक हो गया सही बारिकल्लाहु फीकुम। जी शफक। जी ज़हबा चली गई, ज़माउ प्यास, वब्तलतिल और तर हो गई उरूक रगें, वसबतल अजरु और अजर साबित हो गया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है सही बारिकल्लाहु फीकुम अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल। एक चीज देखें, ये देखें अलिफ लाम, ये स्टार्टिंग में कौन सा हमजा जो आ रहा है, ये हमजातुल वस्ल है या हमजातुल क़त है? ये शफक जी हमजतुल वस्ल है। ठीक है, तो हमजातुल वस्ल पे हम क्या हरकत लगाएंगे? अलिफ अलिफ अरे जबर जबर। तो इसको ना जब हम अकेला पढ़ेंगे तो अल उरूकु पढ़ेंगे, ठीक है? अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे, आइन उरूकु नहीं पढ़ेंगे, अल उरूकु। जब हम अलग अलग कलिमात पढ़ते हैं ना अरबी के, तो अलिफ लाम के साथ पढ़ते हैं, और जब मिला के पढ़ते हैं तो हमजातुल वस्ल गिर जाती है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? अज़्ज़माउ अज़्ज़माउ। ठीक है सही बारिकल्लाहु फीकुम। चले जी हम आगे चलते हैं। आज इंशाल्लाह आज हम कुरानी और मसनून दुआओं के बारे में देखेंगे। कुरानी और मसनून दुआएं ये कौन सी हैं? कुरान के अंदर जो अंबिया सलाम की दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने दर्ज की हैं, ये वो दुआएं हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी महज हेलो? बताइए। मैम आपने इससे पहले जो दुआ कराई है ना, वो एक और दुआ जो है अल्लाहुम्मा लका संतु वाली, एक बार आप वो एक्सप्लेन कर देंगे? उसके बारे में कल बताया था कि वो जो है वो रिवायत दईफ है, ठीक है? तो हमने जो याद किया ज़हब अज़्ज़मा वो ऑथेंटिक है, हमने उसको पढ़ना है, ठीक है? ओके मैम। और ये जो दुआ है ना ज़हब अज़्ज़मा, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा खोलना है। जब रोज़ा खोल लें तो उसके बाद ये दुआ करनी है, ठीक है? और ओके। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट मैंने आपको मैम भेज। रोजा खोलने से पहले कौन सा? रोज़ा खोलने से क्या?
रोजा खोलने से पहले कोई दुआ नहीं होती? बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा खोलना है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। अच्छा जी, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है इसका आप खोज लें पेज नंबर 3। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि कुरानी और मसनून दुआएं ये कौन सी दुआएं हैं। कुरान में जो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम की जो दुआएं दर्ज कर दी हैं, जो अंबिया कराम ने मुख्तलिफ मौक़ों पे मांगी, उनको कुरानी दुआएं कहते हैं। और हदीस की जो दुआएं हैं, मसनून दुआओं से मुराद है कि हदीस की वो दुआएं जो अल्लाह के रसूल ने मांगी। ठीक है। तो अमूमन कुरानी और मसनून दुआओं की किताब भी मिलती है, और इन दुआओं को मांगने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत जामे दुआएं होती हैं। ठीक है, जो अंबिया कराम ने मांगी। तो अगर हम वो भी मांगे और उनको भी आदत में ला दें तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगी जा रही होती हैं। छोटी सी दुआ होती है लेकिन उसके बहुत से मीनिंग निकल रहे होते हैं और बहुत से फ़वाइद हो रहे होते हैं उसके। ठीक है। अच्छा, दुआ की फजीलत और अहमियत। अल्लाह ताला का फरमान है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, कि दुआ ही असल इबादत है, दुआ ही इबादत है। ठीक है। तो अगर इंसान दुआ मांगता है तो ये भी अल्लाह ताला की वो इबादत कर रहा होता है। इसके अलावा सूरतुल बकरा में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, आपसे पूछें, तो उनको बता दें कि मैं करीब हूँ। फइन्नी करीब, मैं करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। यानी जो भी हम दुआ मांग रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमें आंसर कर रहे होते हैं। इज़ा दआन, जब भी वो पुकारता है, जब वो पुकारता है मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। ठीक है। अच्छा, दुआ मांगने के आदाब क्या है? सबसे पहले कि इखलास से नियत और पूरी तवज्जो के साथ मांगा जाए, कॉन्शियस होकर दुआ मांगी जाए। दुआ के इब्तिदा और इख्तिताम पे दरूद शरीफ भेजा जाए। और हदीस में आता है कि जो जिस दुआ में दरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता उसके स्टार्टिंग में और आखिर में, तो वो दुआ जो है मुअल्लक रहती है, वो ऊपर को नहीं उठती। दरूद शरीफ जो है इसको ऊपर की तरफ उठाता है। अच्छा, उसके बाद दुआ में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाए। कोई भी ऐसे अज़कार जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई है तो सबसे पहले उससे आगाज़ करना चाहिए दुआ का। जैसे है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्की व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, ये अल्लाह ताला की हम्दो सना के कलिमात हैं। इसके अलावा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी अल्लाह ताला की हम्दो सना के कलिमात हैं। इसके अलावा एक और दुआ है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ये जो है अल्लाह ताला की हम्दो सना के कलिमात हैं। ठीक है। तो कोई भी ऐसा जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई है तो वो मांगी जा सकती है शुरू में। अच्छा, दुआ को इसके अलावा दुआ में अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश चाहें, उसके बाद जो है अल्लाह ताला से बख्शिश के कोई कलिमात कहें। ठीक है। और उसके बाद असल में अपनी दुआ करें, अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद कोई भी बख्शिश की दुआ कर लें, जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। ठीक है। तो कोई भी आपको इस्तिग़फ़ार की कोई दुआ आती है, कोई कलिमात आते हैं तो उसको मांग लें। अच्छा, कबूलियत के यकीन के साथ दुआ करें। ठीक है। आपको यकीन हो कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुनने वाला है, अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करने वाला है। और ये हो गए दुआ के आदाब। अच्छा, अब आते हैं कुरानी और मसनून दुआओं पे। सबसे पहले जो इस किताब में दुआएं हैं वो कुरानी दुआएं हैं। ठीक है। ये देखें, जो अभी मैंने दुआ पढ़ी है यहाँ पे लिखी हुई है,
पेज नंबर 5 पे। ठीक है, यहाँ पे जो दुआएं लिखी गई हैं ये अल्लाह ताला के हम्द व सना के कलिमात हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये भी अल्लाह ताला की हम्द व सना का कलमा है। तो दुआ का आगाज़ जो है हम्द व सना के कलिमात से करना है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप लोग पेज नंबर 7 पे। हम दुआ देखते हैं, दुआ नंबर 3। हो सकता है ये आप सबको आती हो, लेकिन इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम दुआ है। दुआ क्या है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बी, ए मेरे रब, इरहम, रहम फरमा, हुमा, उन दोनों पर। किन दोनों पर? मेरे माँ और बाप पर। कमा, जैसे कि, रब्बयानी, उन्होंने मेरी परवरिश की, सगीरन, बचपन में। तो ये पेरेंट्स की के लिए दुआ है, तो इसको ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद में किया है। इसको मैं 1-2 दफ़ा पढ़ती हूँ, आप गौर से सुने, अगर कोई मिस्टेक है तो इंशाल्लाह निकल जाएगी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 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 जी, किसी को याद हुई ये दुआ? जी अर्शी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दोबारा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बयानी। रब्बयानी सगीरा। ठीक है जी, शफक। जी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। रब्बयानी सगीरा। रब्बयानी सगीरा। रब्बयानी या मदौरा। रब्बयानी सगीरा। एक दफा फिर। रब्ब रब्बयानी सगीरा। पूरी दुआ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अब इसको देख के पढ़े। जी शफक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। बा मुशद्दद के ऊपर क्या हरकत है? जी ज़बर। तो कैसे पढ़ेंगे? कमा रब्बयानी सगीरा। ठीक है, सही। बारिकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ील। मीटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, तो अस्मा आप फिर लिंक भेज दीजिएगा। जी जी मैम। अरूबा, दुआ सुनाए। जी मैम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कमा का काफ पुर हो रहा है आपका। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सही, बारिकल्लाहु फीकुम। जी अस्मा, आप सुनाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सगीरा। सगीरा।